dear brothers, लास्ट टाइम गए टाइम हम लोग देखा था सुलेमान का जीवन में के बारे में, एंड वी हैव लर्न सो मेनी थिंग्स। सीखे थे कि वो कैसा शुरू किया, उनका जीवन बहुत ही अच्छा था। उनका पिताजी परमेश्वर के प्रेमी थे, दाऊद, लेकिन वो भी पहले परमेश्वर से बुद्धि मांगा, परमेश्वर दिया था। परमेश्वर काफी खुश थे उनके जीवन में, लेकिन उनका शादी बहुत अविश्वासी लोगों के साथ किया था। He had done so many foreign wives and they turned his heart away from the Lord, and he went to so much of idolatry. Ultimately, the Lord was so much unhappy with him that he died without much fellowship with the Lord, and his end was very bad. उनका जीवन बहुत ही खराब हुआ था। सुलेमान को इतना सारा बाइबल में बुक भी लिखा है, पुस्तक भी लिखे हैं, वो तो है, नीति वचन लिखा है, कई सुसमाच भजन संगीत भी लिखा है, सॉन्ग ऑफ सॉलोमन और सब उपदेशक, Ecclesiastes also he have written. But we can write so many things, and but our life can be all wrong. तो ये हमारे लिए एक चेतावनी भी होता है। तो आज ब्रदर राजू है on the line. Yes, brother. Okay. So now we see that Solomon died and he lived. He was king for nearly 40 years. और सुलेमान जब जिया वो 40 साल तक राजा था और वो फिर उसके बाद मृत्यु हो गई। And then he was his son was Rehoboam, who became the next king. और फिर उसके बाद यारोबाम जो था वो राजा बन गया। And because Solomon was unfaithful in the last years of his life, God had decided to separate the kingdom of Israel in two parts, Israel and Judah. और क्योंकि जो सुलेमान था परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने दो राज्य का बंटवारा किया, जुदा और सॉरी ब्रदर अनदर and Israel. और इजराइल। So we see that towards the end of Solomon's life, he had so many enemies. और हम देखते हैं कि सुलेमान के अंतिम जीवन में भी तक देखे कि बहुत सारा उसके शत्रु और दुश्मन थे। And one of them was Jeroboam. और उसमें से एक जो था वो था यारोबाम। He was in charge of the building. He was a building supervisor, and he was a very good, efficient man. और वो जो व्यक्ति था बहुत ही अच्छा था और बहुत ही चालाक भी था, बुद्धिमान था, और वो जिम्मेदारी संभालता था सुलेमान राजा का। And because he was a good man, one of the prophets called Abijah in 1 Kings chapter 11, he came to Jeroboam and told him that he would be the next king. वचन ब्रदर पहला राजा chapter 11. ओके, सो पहला राजा 11 में बताया गया है कि उसके बाद वो योराम राजा बना। No, Jehoram, he came and told Jeroboam that he will that the prophet said that God will divide the whole country. 10 tribes will go to him, and 2 tribes will go to the family of David. और भविष्यवक्ता जो है वो राज का बंटवारा कर देंगे, 2 परिवार जो है डेविड के ट्राइब से जाएगा और 2 अलग राज्य से जाएगा। And chapter 11 verse 33 says, और पहला राजा 11 के अध्याय 33 में बताता है, For Solomon has abandoned me and worshipped Ashtoreth, the goddess of Sidonians, Chemosh, the god of Moab, and Molech, the god of the Ammonites. He has not followed my ways and done what is pleasing in my sight. He has not obeyed my decrees and regulations as his father David did. उन्होंने तो मुझे त्याग कर सिदोनियों की देवी अस्तोरेत और मोआबियों के देवता कामोस और अमोनियों के देवता मिलकोम की उपासना की, और जो कुछ मेरी दृष्टि में ठीक है वे उसी के अनुसार अर्थात मेरे मार्ग में नहीं चले, और जिस प्रकार उसका पिता दाऊद मेरी विधियों और मेरी नियमों को मानता रहा वैसा उन्होंने नहीं किया।
And he told them that during Solomon's time, he would let Solomon rule up to his death, but after his death, he will give 10 tribes to Jeroboam and one tribe only, 2 tribes to his son Rehoboam. तो मृत्यु के बाद ही है जो दो राज्य जो है वो जेरोबाम को जाएगा और उसके सन को और बेटा को। No, no. And there's 2 tribes to the son of Solomon, who was Rehoboam. और 2 गोत्र जो रहेगा वो रेहोबाम के जाएगा जो सुलेमान का बेटा है। Because all this happened because of the unfaithfulness of Solomon. ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सुलेमान जो है विश्वास योग्य नहीं था। So the kingdom was divided into 2. Northern part was Israel and southern part was Judah. तो जो राज्य है 2 भागों में बट गया, एक उत्तरी और एक पश्चिमी। Dakshini. उत्तरी और दक्षिणी। यस। The south one was Judah and the north one was Israel. और जो दक्षिणी था वो जुदा था और जो उत्तरी था वो इजराइल था। So that was and because the king of Israel would be Jeroboam, who was earlier the supervisor under Solomon. और यारोबाम जो था पहले वो सुलेमान के राज्य में काम करता था, लेकिन वो अब राजा बनने वाला है। और the Judah, the king would be Solomon's son Rehoboam. और जो जुड़ा का जो राजा बनने वाला था वो रेहोबाम सुलेमान का बेटा। Now during Solomon's time, the whole country had gone into so much of idolatry and people had forsaken God and were running after so many other idols of the surrounding nations. और सुलेमान के टाइम में क्या हुआ था, बहुत सारी मूर्ति पूजा हो रहे थे और सारे मूर्ति पूजा जो है लोगों में, इजराइलों में फैल गया था। So God told Jeroboam, who was a supervisor under Solomon, verse 38, if you listen to me, chapter 11:38, if you listen to me to what I tell you and follow my ways and do whatever I consider to be right, and if you obey my decrees and commandments as my servant David did, then I will always be with you and I will establish an enduring dynasty for you as I did for David, and I will give Israel to you. और पहला राजा के अध्याय 11 में वचन 38 कहता है, पहले योराबाम जो था वो सुलेमान के अंदर में काम करता था और उसका वो काम को अधिकार था उसके अंदर, लेकिन वचन बताता है तब ऐसा होगा कि यदि तू मेरी सब आज्ञाओं को माने और मेरे मार्गों पर चले और मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानकर जो मेरी दृष्टि में ठीक है वही करे, जैसा कि मेरे दास दाऊद ने किया, तो मैं तेरे साथ रहूंगा और जैसा मैंने दाऊद के लिए किया वैसा तेरे लिए भी एक अस्थाई घराना स्थापित करूंगा और इजराइल को तेरे हाथ में कर दूंगा। So we see the heart of God is always that the people of God should turn to him and to turn away from idolatry and from sin. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि इजराइल जो है हमेशा ये पाप मूर्ति पूजा से अलग हो जाए, so that God can really bless them and give them peace and joy and happiness. तभी परमेश्वर की आशीष उनके ऊपर आएगी और आनंद और शांति भी आएगा। And when Solomon heard that God was going with Jeroboam, in verse 40 it says, Solomon tried to kill Jeroboam, but he fled to King Shishak of Egypt and stayed there until Solomon died. और जब सुलेमान को मालूम पड़ा कि योरोबाम जो है राजा बनने वाला है तो उसने योरोबाम को मारना चाहा। वचन 40, इस कारण सुलेमान ने यारोबाम को मार डालना चाहा, परंतु यारोबाम उठकर मिस्र को राजा शिशक के पास भाग गया और वह सुलेमान की मृत्यु तक मिस्र में ही रहा। So we see in verse chapter 12 that Solomon died and then his son Rehoboam became the king of Judah. तो हम देखते हैं कि जैसे ही सुलेमान की मृत्यु हो गई उसके बाद यारोबाम राजा बन गया। Rehoboam. हाँ, यारोबाम, यस। So now we see that Rehoboam
was a young, was only we don't know how old was he. Maybe he was around 40 years old. तो यारोबाम जो था हो सकता है कि लगभग 40 वर्ष की उम्र होगा, But he didn't have the fear of God at all in his life. लेकिन उसके जीवन में परमेश्वर का भय बिल्कुल नहीं था, Because Solomon was so rich and there was so many idolatry around him, he never was brought up in the fear of God. क्योंकि सुलेमान जो था उस समय उस समय मूर्ति पूजा था और काफी आलीशान जीवन जी रहे थे, तो वो उस यारोबाम को गॉडली ईश्वरीय भय में कभी बढ़ नहीं पाया। And because Solomon towards the end of his life had become so much backslidden, he made the life of the people of Israel also very hard. तो हम देखते हैं कि सुलेमान भी है परमेश्वर से पीछे हट गया, काफी मूर्ति पूजा लाइफ जिया और इजराइल और दूसरे लोगों को भी ठोकर का कारण बन गया। He put a lot of heavy taxes on them. They had to pay a lot of money. और उसके बाद बहुत सारा उसने बोझ रख दिया उसको हमें पे करना है। So we read in chapter 12 that the leaders of Israel came and asked him that please make us less taxes and make our life little easy. Your father was given us very hard time. तो उन्होंने कहा आओ इस जो बर्डन है जो पैसे भरने का, राजा ने बहुत हमारे ऊपर बहुत बड़ा बर्डन डाल दिया है। Then he decided to ask advice. तब उसने क्या सोची कि मुझे सलाह लेना है। He asked advice from the older people, the older counselors who were there with his father and his grandfather. It was 7. The older counselors said, if you are willing to be a servant to these people today and give them a favorable answer, then they will always be loyal subjects. तो पहला राजा 12:7 में लिखा है, तब उन्होंने उससे कहा, यदि तू आज इस प्रजा का दास होकर उनकी सेवा करे और उनकी मांग पूरी करे और उनसे मधुर बातें करे, तो वे तेरे सेवक सदैव बने रहेंगे। But verse 8 says, but Rehoboam rejected the advice of the older men and instead asked the opinion of the young men who had grown up with him and now they were his advisors. वचन 8 कहता है, उसने प्राचीन द्वारा दी गई सम्मति को ठुकरा कर उन नवयुवकों से सम्मति ली जो उसके साथ बड़े हुए थे और उसकी सेवा करते थे। So instead of taking the advice of older and wiser people, he took the advice of the young people, and this young people gave a very foolish advice saying that he told them, we will make life more tough for you. तो उन्होंने क्या हुआ कि प्राचीनों की जो सलाह दिया गया था उसने नहीं माना, बल्कि जो नवयुवक की सम्मति लिया उन्होंने उनकी बात मान ली। And verse 13 says, but Rehoboam spoke harshly to the people, for he rejected the advice of the older counselors. और वचन 13 कहता है, तब राजा ने प्राचीनों की सम्मति को ठुकरा कर प्रजा से कठोर बातें की। So because of that, he did a very foolish thing, and the people of Israel, the 10 tribes of Israel, separated from him. तो इसका परिणाम क्या हुआ कि बहुत ही मूर्खता का काम उसने किया और बाद में क्या हो गया कि वो जो राज्य था, गोत्र था, वो अलग हो गया। So they decided to make Jeroboam, who had run away from Solomon to Egypt, he came back and they said, you should be our new king. तो उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम अब ये राजा बनोगे। And then Rehoboam got very angry and he said, come, we will fight against the other 10 tribes of Israel. तो रहोबाम जो था बहुत ही गुस्सा हो गया और सॉरी ब्रदर, He said, we will go and fight against the people who are separated from me. तो उसने कहा कि मैं अब उससे जाके लड़ूंगा जो हमें अलग किया है। But God told a prophet, verse 22, God said to Shemaiah, the man of God, tell Rehoboam that he should not go and fight with his own people. तब परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा बात किया। वचन 22 बताता है, परंतु परमेश्वर का यह वचन परमेश्वर के जन शमायाह के पास पहुंचा। So it was God's plan, because of Solomon's sin, to divide the whole country. और ये परमेश्वर की योजना थी जब सुलेमान का जो राज्य था वो अलग करने का। So Jeroboam made another his capital at
was made in Shechem in the region of Ephraim, tribe of Ephraim. तो रहबाम ने एक अलग जगह बनाया, उस जगह का नाम था सिक्किम. So he was a good, hard-working man, but then he also became very corrupt. और रहबाम जो था वो भी बहुत मेहनती था, लेकिन फिर भी वो भी कुटिल बन गया. Verse 26, Jeroboam thought to himself, unless I am careful, the kingdom will return to the dynasty of David. तब यारोबाम ने अपने मन में कहा, अब राज फिर से दाऊद के घराने का हो जाएगा. So he said, I will make another temple in Shechem in Ephraim, so that people should not go to Jerusalem to worship, they should come only remain in that same place. तो उसने क्या सोचा कि अब मैं इधर ही एक जगह बनाऊंगा सिक्किम में, तो इजराइल के लोग हैं वो यरूशलेम में ना जाएंगे. So he made two calves of gold. I think I made up 2 calves, golden calves, like they had in the time of Moses, and told people to worship them there. तो उन्होंने क्या किया, बलिदान करने के लिए वेदी चढ़ाने के 2 बछड़ों के वेदी बना लिए. So that people need not go to Jerusalem all the way, but they can worship at in Ephraim and also in the northern part called Dan. तो इससे क्या होगा, परमेश्वर के जो लोग हैं वो यरूशलेम में नहीं जाएंगे, बल्कि इधर ही मूर्ति को ही आराधना करेंगे. And verse 30 says, and this became a great sin for the people who worship the idols, traveling as far as north as Dan to worship the one there. तब यह पाप का कारण बना, क्योंकि लोग उसे दंडवत करने बहुत दूर अर्थात दान तक भी जाने लगे. So in addition to that, Jeroboam made so many other wrong things he did. He made more idols, and he made the common people to be as priests. तो रहबाम ने बहुत से ऐसे गलत कार्य किए और परमेश्वर के लोगों को अलग करने का और गलत राह में ले जाने का काम किया. And verse 32, he made a religious festival so that everybody can celebrate festivals to the golden calves. और उन्होंने क्या किया, एक पारंपरिक जो त्योहार है उसको मनाया, और जिससे कि जो परमेश्वर के जन है वो मूर्तियों की आराधना करें. So instead of people going to Jerusalem to celebrate the Passover and other festivals, they did all that for the idols in Israel. तो परमेश्वर के जो लोग हैं उन्हें यरूशलेम में जाना चाहिए फसह का पर्व मनाने, तो वो वहां ना जाके यहाँ पे जो बछड़ों का जो मूर्ति बनाया गया था उसकी आराधना कर रहे थे. So we see that Jeroboam, in spite of God telling him that if you fear God and obey him, he would make him, bless him, he went into idolatry for his own selfish reasons. परमेश्वर ने रहबाम को बोला भी था कि देखो, तुम अगर मेरे भय मानोगे, मेरी आज्ञाओं पे चलोगे, तो तुम्हें बहुत आशीष दूंगा. And God also warned him. He sent a prophet to warn him about this idolatry, but Jeroboam got so angry he wanted to kill him. और परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा रहबाम को चेतावनी भी दिया, लेकिन उसने अपने सोचा कि मैं तो इसे मार डालूंगा. So when he raised up his hand to harm the prophet, his hand got paralyzed. जब वो अपना हाथ भविष्यवक्ता के ऊपर मारने के लिए उठाया, तो उसका जो हाथ था वो लेप्रोसी यानी कि वो पूरा पैरालाइज हो गया, लकवा मार दिया यसी. So but then he suddenly got very frightened and asked the prophet, please ask God to heal me. तब तुरंत ही वो घबरा गया और बोला, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि मेरा ये हाथ ठीक हो जाए. And the prophet said, okay, I will ask God, and then he got healed. और भविष्यवक्ता ने कहा, ठीक है, मैं जरूर प्रार्थना करूंगा और फिर उसके बाद तुम चंगाई हो जाएगी. So this is what the sin of Jeroboam was, that even though God had good plans for him, he messed up his whole plans by doing so much idolatry and doing his own selfish will. तो हम इस तरह से देखते हैं कि उसने परमेश्वर की बात ना मान के बहुत सारा स्वार्थीपन किया और बहुत सारे मूर्ति पूजा भी करने लगा. So verse 33 says, but even after this, Jeroboam did not turn away from his evil ways, but continued to choose priests from the common people
he appointed anyone who wanted to become a priest for the pagan shrines. तो वचन 33 बताता है, फिर अपने मन से ठहराए हुए महीने में अर्थात 8वें महीने के 15वें दिन वह बेटल में अपनी बनाई हुई वेदी पर बलिदान चलाने लगा। उसने इजरायलियों के लिए एक और पर्व ठहराया और वेदी पर धूप जलाने लगा। Verse 33 of chapter 13. ओके सॉरी। इस घटना के बाद भी यारोबाम अपनी बुरी चाल से नहीं फिरा, परंतु फिर से सब प्रकार के लोगों में से उन्होंने ऊंचे स्थान के लिए याजक ठहराए, वरन जो कोई चाहता था उसने ऊंचे स्थान का याजक होने के लिए संस्कार किया, और यह बात यारोबाम के घराने के लिए पाप ठहरी, जिससे उसका विनाश हुआ और वह पृथ्वी पर से मिटा दिया गया। See, we can do what God has given human beings the choice to do what they like. तो परमेश्वर ने हम लोग को एक चुनाव दिया है, लेकिन मनुष्य जो चाहते हैं वही करता है। We can either choose God's will or we can do our own will. तो उनके पास चुनाव है, या तो आप परमेश्वर के ओर मुड़ जाए, या तो अपने मन की इच्छा करें। So Jeroboam chose to do his own will, and he chose anybody who wanted to become priest, he appointed them as priest. यारोबाम ने क्या किया कि वो अपनी इच्छा करना चाहा और उसे उन लोगों को राजा याजक बनाने लगा। There are जो so लोग many people in the current Christianity, they want to become leaders because they are clever, because they've got a lot of talent, but they are not anointed by God. आज भी बहुत सारे मसीही जगत में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को अगुआ बना दिया जाता है, लेकिन वो कभी भी परमेश्वर का अभिषेक उनके ऊपर नहीं रहता है। We see so many churches, so many born again churches, believers, people are not anointed, but they have got a lot of gifts. और हम देखते हैं बहुत सारी कलीसिया है जो बहुत सारा उनको गिफ्ट है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा वो अभिषेक किए हुए नहीं है। They are so proud and selfish, and they do not seek the glory of God. और वो बहुत ही घमंडी हैं और वो अपनी इच्छा करना चाहते हैं, और परमेश्वर को कभी ढूंढते ही नहीं। And because of that, they run after the earthly things. और इसका परिणाम क्या होता है, वो पृथ्वी के संपत्तियों को ढूंढने लगते हैं। What is the meaning of idols and doing all these activities? That means for Christians is running after things that are away from God. That is running after worldly things and worldly ideas and worldly money and name and fame. तो यह मूर्ति पूजा क्या है, क्यों इसके पीछे लोग जाते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें संसार में आनंद मिलेगा, बहुत सारा आदर मिलेगा, बहुत सारे हमें अपनी इच्छा करने का अवसर मिलेगा। So these are the idols of all believers. और यही एक मूर्ति पूजा है सारे विश्वासियों का। That is why we see in so many churches, people are running after worldly things, after money, after pleasure, after fame, and after making a great name for themselves. तो हम भी देखते हैं कि बहुत सारे कलीसिया में लोग अपना नाम के पीछे भागते हैं और अपना मशहूर होना चाहते हैं, और बहुत सारे पैसे के पीछे भागते हैं। ये सब के पीछे भाग के ही अपना इच्छा करना चाहते हैं। But they don't have the anointing of God, they don't have a desire for God in their life. लेकिन उनके पास ना तो परमेश्वर की इच्छा है, ना ही परमेश्वर का अभिषेक उनके ऊपर रहता है। And God sends prophets one after another to warn them. और परमेश्वर जो है भविष्यवक्ता को एक के बाद एक उन्हें चेतावनी देने के लिए भेजते हैं। But many of them don't listen to God at all. लेकिन बहुत सारे लोग परमेश्वर की बात को मानते ही नहीं, They don't want to listen to the voice of the prophets. और वो भविष्यवक्ता की वचनों को भी नहीं मानते हैं। And because of that, Jeroboam's family or dynasty was ultimately destroyed. तो इसका परिणाम क्या हुआ, यारोबाम का जो पूरा परिवार था सब खत्म हो गया। So when we follow our own desires and the worldly desires, it results in spiritual death in our own life. अगर हम अपनी इच्छा करना चाहे, अपनी ही चाल चलन में चले, तो हम अपने जीवन को खो देंगे और मृत्यु के शिकार हो जाएंगे। Jesus said, "What shall it profit a man if he gets all the things of this world but loses his own soul?" तो प्रभु यीशु ने भी कहा, यदि तुम दुनिया में सब कुछ पालो और अपने प्राण को हानि उठाओ तो क्या लाभ। So the northern kingdom of Israel of 10 tribes became so corrupted because of idolatry, and they went far away from God. और दूसरी तरफ पे जो गोत्र थे वो भी परमेश्वर से बहुत हो गए, बहुत ही
कुकर्म करने लगे, because that their leader Jeroboam had followed after idolatry. क्योंकि यारोबाम जो था वो पूरी मूर्ति पूजा में चला गया था। They say in Hindi, जैसे राजा वैसे प्रजा. So जैसे हम हिंदी में भी सुनते हैं, जैसे राजा वैसे प्रजा। like the king, the people also become like that. तो वैसे ही राजा भी वैसा ही बन गया। So even among Christian circles, just as the leader is unspiritual and idolatrous and worldly, the people of that church also become very worldly. अगर कोई कलीसिया का जो अगुवा है वो भी अगर मूर्ति पूजा है और पूरी ईश्वरीय भक्त नहीं है, तो वहाँ की जो प्रजा होगी वो भी ऐसा ही बन जाएगी। Because people just want to enjoy life. क्योंकि लोग जो है जीवन का आनंद लेना चाहते हैं। And God's word tells us, and God's prophet tell us to fear God and to enjoy holiness, because holiness is good for us and will keep us away from sin. लेकिन परमेश्वर के जो सही भक्त रहते हैं वो कहते हैं कि परमेश्वर की पवित्रता में रहो और परमेश्वर का भय मानो और प्रभु की इच्छा करो। But most people and most of the leaders don't like to listen at all. लेकिन बहुत सारे जो अगुवे हैं और विश्वासी है वो सुनना ही नहीं चाहते हैं, They want to do their own thing. क्योंकि वो अपनी इच्छा को करना चाहते हैं। So this happened in the northern kingdom, but what happened in the southern kingdom? तो ये जो है उत्तरी में हुआ, तो दक्षिणी में क्या हुआ? The southern kingdom, it says in chapter 14, verse 21. दक्षिणी में हम देखते हैं कि अध्याय 14 में It says, meanwhile, Rehoboam the son of Solomon was king in Judah. He was 41 years old when he became king, and he reigned 17 years in Jerusalem. And the city of the Lord had chosen among the tribes of Israel as a place to honor his name. Sorry brother, वचन which one? 21. यहूदा में सुलेमान के पुत्र रहोबाम ने राज किया, और रहोबियाम जब राजा बना तब वह 41 वर्ष का था, और उसने यरूशलेम में 17 वर्ष तक राज किया, अर्थात उस नगर में जिसे यहोवा ने सब इजरायलियों के गोत्र में से अपना नाम रखने के लिए चुना था। उसकी माता का नाम अम्मोनी नामा था। Verse 23 also it says, for they also built themselves pagan shrines and set up sacred pillars and Asherah poles on every high hill and under every green tree. और वचन 23 भी, क्योंकि उन्होंने प्रत्येक टीले पर और हर एक वृक्ष के नीचे अपने लिए ऊंचे स्थान और लाठे और असेरा बना लिए। And verse 24, there were even male and female prostitutes throughout the land. The people imitated the detestable practices of the pagan nations of the Lord. The Lord had driven from the land ahead of the Israelites. और वचन 24 भी, और देश में धर्म के नाम से पुरुष गमन कराने वाले भी थे, और वे उन जातियों के समान घिनौने काम किया करते थे जिन्होंने यहोवा ने इजराइल के सामने से निकाल दिया था। So these children of God, children of Israel, they were called, and Judah especially, they went back into the worst things of the surrounding people of the land of Israel. और ये जो परमेश्वर के लोग थे, इजराइल की प्रजा थे, ये जुदा से बुलाए गए थे, लेकिन ये भी बुरी तरह से पीछे हट गए और बेकार हो गए। There was a lot of idolatry and also sexual immorality. और बहुत सारा जो है मूर्ति पूजक होता है, और बहुत सारे शारीरिक लैंगिक अभिलाषाएं पाप हो रहे थे। When we admire the things of this world, lot of money, pleasure, and then want to become great, always sexual immorality comes there. और जब भी हम इस संसार की दुनिया को आनंद सोचना चाहते हैं, और तभी हमारे शरीर का जो लैंगिक अभिलाषाएं, लैंगिक पाप और बहुत सारा आनंद जो आलीशान जीवन जीते, ये सब ज्यादातर जो है लैंगिक पाप में ही ले जाते हैं। There are so many Christian leaders who have fallen into immorality because they want name, fame, and pleasure. और बहुत सारे ऐसे अगुए हैं जो वो भी लैंगिक अभिलाषाओं में जी रहे थे, और क्योंकि वो दुनिया में मशहूर महान बनना चाहते हैं। But they don't want to listen to the word of God given through the prophets. और लेकिन वो परमेश्वर का वचन नहीं सुनना चाहते जो भविष्यवक्ता के द्वारा दिया गया है। And because of that, the people also copy their same behavior. और इसका परिणाम क्या होता है, वहाँ के जो लोग रहते हैं वो भी उसी तरह से जीने लगते हैं। They also run after money and immorality.
और वो भी पैसे के पीछे भागेंगे और सारी लैंगिक सुख के पीछे भागेंगे। So why are we talking about Rehoboam and Jeroboam? तो मैं क्यों रहोबाम और यारोबाम के बारे में बात कर रहा हूँ? We live in a Christianity where most believers are just following so many idol practices, idolatrous practices. क्योंकि यहाँ पे क्या बहुत सारे मूर्ति पूजा का जो है काम और उसी के ऊपर लवली लोग जीवन बिता रहे थे। Bible in Ephesians says that greed is idolatry. और इफिसियों के अध्याय में कहता है कि जो लालच है वो मूर्ति पूजा के समान है। And we have greed for money, greed for sex, greed for food. और हमें खाना खाने का लालच है, लैंगिक सुख का लालच है और पैसे का लालच है। And greed for fame. और ये दुनिया में महान और आदर पाने का जो लालच है। And this all the idols, if we don't forsake those idols, they will come into our lives and will destroy our lives. और यही सारी जो है मूर्ति पूजा है, अगर हम इसे अपने जीवन से मन नहीं फिराएंगे तो ये हमें हमारे जीवन को नाश कर देगा। And behind all these idols is the devil. Lot of demons are there. और जितने भी मूर्ति पूजा के पीछे जो है शैतान होता है। That is why the devil troubles so many believers when they run after the things of this world. और इसलिए जो है शैतान जो है उन लोगों को बहुत परेशान करता है, क्योंकि वो दुनिया की चीजों के पीछे भागते हैं। They have no peace of mind, they have no joy, there is no love. और उनके जीवन में कोई भी शांति नहीं रहता है, आनंद नहीं रहता है और कोई भी सुख शांति नहीं रहता है। They've got all sorts of evil in their hearts, and these temptations become very strong for them. और बहुत सारी बुराइयां उनके हृदय से निकलती है और उनके लिए वो ये परीक्षाएं बहुत ही मजबूती से उनको जकड़ लेता है। They cannot overcome sin और वो उन पापों के ऊपर जयवंत नहीं हो पाते हैं, because they have kept idols in their life. The things of this world have become very dear to them. क्योंकि उन्होंने अपने हृदय में बहुत सारे संसार की जो सुख विलास है और ये सब उन्होंने बना के रखा है, इसलिए उनको वो उनसे मन नहीं फिराए हैं। So, my dear brothers, we must repent from all these the idols in our life, all these desires for greed, for all these money, sex, and pleasures in our own life, and keep God as priority in our own life. तो हे भाइयों, हम सबको इस जो भी मूर्ति पूजा हमारे हृदय में है बना हुआ है मूर्ति के समान, जैसे पैसा, आदर पाना, सुख विलास और संसार की अभिलाषा, उस सब से हमें मन फिरा के हमें उसे छोड़ देना है। Many of these idolatrous practices, they have got lot of festivals and enjoyment and programs. और बहुत सारे ये जो मूर्ति पूजा और ये सब जो कार्यक्रम होता है, ज्यादातर लोग आनंद और सुख और बहुत सारा मनोरंजन करते हैं। So then we see among Christians also, they have lot of music, they have lot of concerts, and so many other things just to entertain themselves and keep them very occupied and happy. और हम मसीह जगत में भी देखते हैं कि बहुत सारा एंटरटेनमेंट, बहुत सारा मनोरंजन और बहुत सारे ऐसे आजकल सुविधा हो गई है कि उनको आनंद रखने के लिए ये सब का भी वो अपने जीवन में ले आए हैं। But God's presence has gone away from them. लेकिन परमेश्वर जो है उनके जीवन से निकल गया है। But God always sends them warnings through the prophets to turn away from all these pleasures and keep God first in their life. और परमेश्वर जो है भविष्यवक्ताओं के द्वारा उन्हें चेतावनी देते हैं कि इससे मन फिरा लो और इससे दूर हो जाओ। But we see both these kings, Jeroboam and Rehoboam, never turned to the Lord. They died in their sin. और लेकिन रहोबाम और यारोबाम जो था वो उसमें पाप में ही मर गए, लेकिन कभी भी उन्होंने मन नहीं फिराया। And most of the people of the land of Israel, in both Israel and Judah, followed them. और इजराइल और जो जुदा था दोनों ये दोनों का पीछा करते थे, Except some a few prophets of God. खाली थोड़े जो थे जो प्रभु की भविष्यवक्ता को छुड़ाकर। So we see that most people just follow the world. Most Christians follow the world so passionately. और हम भी देखते हैं कि जो बहुत सारे विश्वासी जो है इस संसार के जो रीति रिवाज है बहुत ही जोश के साथ करते हैं। Even in CFC also, there are a lot of believers who are more interested in worldly things rather than spiritual things. और इवन CFC में भी बहुत सारे जो है संसार की चीजों पे ही और संसार के पीछे ही भागते हैं। They like to listen to Brother Zach's messages, but when they are practical lives, they do their own thing.
और उनको तो भाई जैक का जो सरमन है, मैसेज है, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो बहुत पीछे हटते जाते हैं। Their ways of doing things in the world, their practical lives are just like the people of this world. लेकिन जो उनका जो हर दिन का जो जीवन होता है, वो अंदरूनी जीवन, वो बस अपने ही इच्छा के अनुसार और संसार के जैसे ही जीते हैं। The mind is set on things of the world rather than things of God. और उनका जो हृदय है, मन है, वो संसार के पृथ्वी के चीजों पर ही लगा है, न कि परमेश्वर के स्वर्गीय बातों पर। They want to please the worldly relatives and friends rather than pleasing God. और वो चाहते हैं कि अपने संबंध, परिवार और ये सबको खुश करना चाहते हैं, ना कि परमेश्वर को। Because of that, God withdraws from their life and does not fill them with the Holy Spirit. और इसका जो परिणाम क्या होता है, परमेश्वर उनके जीवन से हट जाते हैं और वो फिर उनका जीवन बहुत ही व्यर्थ हो जाता है। But again and again, God always tells them to turn back, to repent and turn back to Him. और फिर भी परमेश्वर जो है बार बार उन्हें बोलते हैं, मन फिरा लो, आज मन फिरा लो, मन फिरा लो। So that the eternal destiny will be safe. तो तुम्हारा जो अनंत जीवन है वो तुम्हारे हाथ में बच जाएगा, तुम बच जाओगे अनंत आग में जाने से। God is very kind and compassionate, and when people repent, God does wonderful works for them. और परमेश्वर जो है बहुत दयालु है, अनुग्रहकारी है, हमारे लिए परमेश्वर ने बहुत बढ़िया और अद्भुत कार्य किया है। So, dear brothers, let us stop following the people of this world and worldly believers who are there in so many churches. Let us have the fear of God in our own life. तो इसलिए भाइयों, इस संसार के रीति रिवाज और बहुत सारे विश्वासी जो संसार के रीति रिवाज पे जी रहे हैं, हम उसे ना पीछा करके हम परमेश्वर की आवाज को सुने। Let us read the Word of God, and the Word of God is very simple and clear to all those who are humble in heart. और तो हम आइए प्रभु प्रभु का वचन को जाने, पढ़े, और क्योंकि परमेश्वर के वचन बहुत ही नम्र, बहुत ही सीधा है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। Today, one brother was asking me, what do you believe? Do you believe that there are two second comings when Jesus is going to come back two times? तो आज एक भाई पूछ रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह जो आने वाले हैं, किस प्रकार से आएंगे, दो भाग, कैसा, दो प्रकार। First, will he come first to take his the believers, and again second time also he will come to collect the Jews. और वो कह रहे थे पहली बार आएंगे तो प्रभु विश्वासियों को ले जाएंगे और उसके बाद यहूदियों को भी ले जाएंगे। So I told him, you must read the Word of God clearly. It's so clear. There are so many people who make up so many doctrines. तो मैंने उनको बोला, आप वचन को अच्छे से क्यों नहीं पढ़ते, आप अच्छे से पढ़िए, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सिद्धांत और शिक्षा बना दिया है। The Word of God is very simple and clear. प्रभु का वचन जो है कितना आसान है, कितना सरल है। There is only one second coming. और एक ही जो है प्रभु एक ही बार फिर आएंगे, दूसरे बार। And those who are ready, God will take them. और जो तैयार रहेंगे प्रभु उनको उठा लेंगे, ले जाएंगे। And the rest, God will leave them for destruction. और बाकी जो बचे रहेंगे वो नरक की आग में डाल दिए जाएंगे। Just as the time of Moses, God took Moses, no, time of Noah, God saved Noah and his family. All the others were destroyed. और जैसे नोहा के समय में भी ऐसा हुआ था, नोहा और उनके परिवार प्रभु ने बचा लिए गए थे, बाकी जितने भी थे पृथ्वी पर वो सब नाश हो गए थे। All the people in the world at that time were just living for their own pleasure and idolatry, sin and anger and hatred. और उस समय क्या होता था, लोग अपने इच्छा अनुसार जीते थे, बहुत सारे नफरत थे, बहुत सारा मूर्ति पूजा था और बहुत सारा पाप था। उस समय लोग अपनी इच्छा से जी रहे थे। So many people get deceived by all these so many false teachers that have come up in this last time. तो बहुत सारे विश्वासी ऐसे ही धोखा खा जाते हैं, बहुत सारे झूठे वक्ता जो है ये अंत के समय में आ गए हैं और उसके द्वारा जो है वो धोखा खा जाते हैं। So when new believers come into the church, they see all these people who have got so many type of doctrines and teachings. और बहुत सारे जब नया विश्वासी आते हैं तो बहुत सारा नए नए सिद्धांत, बहुत सारा शिक्षाओं के पैटर्न होने लगता है। And many of these older believers are very bad examples to other Christians. और बहुत सारे जो पुराने विश्वासी रहते हैं, वो नए जो मसीह में आते हैं उनके लिए बहुत बुरा उदाहरण होते हैं। So we must not follow these bad examples, but follow Jesus Christ and godly examples that are before us.
तो हमें जो है उनका नहीं पीछा करना है, बल्कि हमें प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों का पीछा करना है, और जो प्रभु के भक्त है, ईश्वरीय है, उनका पीछा करना चाहिए। Just as Apostle Paul said, follow me even as I follow Christ. जैसे पौल ने क्या कहा कि मेरा पीछा करो क्योंकि मैं प्रभु यीशु का पीछा करता हूँ। So, my dear brothers, let us learn from these bad examples of Rehoboam and Jeroboam. तो मेरे भाइयों, ये रहोबाम और रोहबाम से हम सीखे कि इनके जो गलत उदाहरण थे, इससे हम क्या सीखते, उससे हमें वार्निंग। They could have done the good things and kept God first, but they did all the wrong things and went into all sorts of sin and they destroyed their lives. उन्होंने तो प्रभु को पहला रखा, लेकिन बाद में अपने जीवन में जो वो रखे थे, उसके द्वारा ही वो उनको जीवन को नाश हो गए। And these, we must remember, they were the chosen children of God. और ये जो थे परमेश्वर के चुने हुए जन थे। How they backslid and they go to hell. और कैसे वो पीछे हट गए और नरक की आग में चले गए। So let us have the fear of God inside in our lives and let us serve God. तो आइए हमें परमेश्वर के भय में मानते हुए जीवन जिए और प्रभु की सेवा करें। Anybody else wants to share? Come and share from their lives and from these examples, whatever you learned from Jeroboam and आपको शेयर करना है तो जरूर शेयर कर सकते हैं। कोई भी शेयर कर सकते हैं। Anything that you God has touched you and challenged you. हॅलो, प्रेज लॉर्ड. प्रभूला Praise स्तुती the Lord. असो. बोला. हाँ. प्रभूला स्तुती असो. आज जे याराबाम बद्दल आपण आज ऐकलेलं आहे. याराबाम बद्दल ऐकत असताना पहिले शमूएल याचा 15वा अध्याय आणि 23 वचनामध्ये सांगितलेलं आहे. पहिले First शमूएल Samuel 15. 23वा वचन, 23वा वचन, 23वा वचनामध्ये सांगितलेलं आहे की पहिले शमूएल First Samuel 15. हा 23. हा 23. हट्ट हा पाप आहे. हट्ट हा पाप असल्यानंतर आपल्या जीवनामध्ये प्रभू येशूला आम्ही स्वीकारला असताना आज आमचा अभिषेक त्याचा कुठं आपल्या आत्म्यावर आहे. जुन्या करारामध्ये त्यांच्या बाहेर होता, पण आज तो असा आत्मा आपल्या आतमध्ये आहे. आज आम्हाला इतकं भिवून वागलं पाहिजे की जे पहिले शमूएल मध्ये सांगितलेलं आहे. एक मिनिट. पहिले शमूएल, एक मिनिट. पहिले शमूएल 15 आणि 23 वचन. First Samuel 15, 23 and 24. 15, 23. हा 23. पहिले शमूएल, मला वचन काढायचं आहे. एक मिनिट. हा कोई वाचू शकता? हा वाचा. हाँ. Brother, you can read हिंदी में. 23 वचन आहे. पहिल्या शमूएल 15, 23 वचन आहे. कारण अवाज्ञा जादूगिरीच्या पापासारखी आहे आणि हट्ट हा मूर्तीपूजा व मूर्ती करणे यासारखा आहे. तू यहोवाचे वचन धिक्कारले, यामुळे राज्य करण्याविषयी त्याने तुला धिक्कारले आहे. आज हे आपल्या जीवनामध्ये जुन्या करारात सांगले, पण आज आपल्या जीवनामध्ये, आपल्या विचारामध्ये, आपल्या बोलण्या सगळ्या गोष्टीमध्ये हे आपल्या आतमध्ये आहे. पण आम्हाला देवानं अशासाठी राखलेला आहे की तो आम्हाला रोज काय करत आहे, रोज तोच्या वचनानं आम्हाला काय नवीकरण करताय. त्याच्या वचनातून तो आम्हाला नवीकरण करताय. याकोबाचे पत्र यामध्ये अनेक वचन आहे. याकोबाचे पत्र याचा पहिला अध्याय, बुक ऑफ जेम्स. पहिला अध्याय आणि 14 वचन, 14-15 वचन.
तर प्रत्येक आपल्या हवेने ओढलेला व भोलावलेला असता परशीत पडतो. मग हाव ही गर्भ धरून पापाला जन्म देते आणि पाप पूर्ण दशेच आल्यावर मरणास उपजवते. James आज chapter आपल्या 1 verse जीवनामध्ये 15-16. हा आज आपल्या जीवनामध्ये हे सगळं येत असताना, विचारामध्ये येत असताना, ज्या वेळेस कृती करत असताना, ज्यावेळेस कृती केली त्यावेळेस ती गर्भधारण झालं. आज याराबामनं काय केले, सगळ्या गोष्टी काय केल्या, कृतीतून केल्या. त्यामुळं देवाचा त्याच्यावर काय झाला, हात आला. देवाचा हात आला. मग नंतर त्याला काय झालं, ती मोठी शिक्षा भोगावं लागली. आज आपल्या जीवनामध्ये आम्ही विश्वासणारे असताना आम्ही गंभीर कुठं असलं पाहिजे, आम्ही गंभीर या ठिकाणी असलं पाहिजे की इब्रिकास पत्र याचा 12वा अध्याय आणि 9 आणि 10 वचन आपल्यासाठी मौल्यवान आहे. शिवाय आपल्या देहाचे बाप आपल्याला शिक्षा करणारे होते आणि आपण त्याची भेट धरीत असू तर आपण फार विशेष करून आत्म्याच्या बापाच्या अधीन व्हावे आणि जगावे की नाही. कारण थोड्याच दिवसापर्यंत त्यांना जसे बरे वाटले त्याप्रमाणे ते आम्हा शिक्षा करीत असत, परंतु हा तर आमच्या हितासाठी, आम्ही त्याच्या पवित्रतेचे भागीदार व्हावे म्हणून शिक्षा करत असे. आज नव्या करारामध्ये आपल्याला शिक्षाची होत असताना त्याच्या पवित्रतेचे आम्हाला भागीदार तो करत आहे. आज आपला बाप आपल्या शिक्षा काय करत आहे, ती थोडी शिक्षा आहे, पण आता प्रभू आपल्याला जी शिक्षा करताय ती कशासाठी, आम्ही पवित्रतेचे भागी होण्याकरता आहे. हे प्रभूने दिलेल्या फार वचनाबद्दल मी आभार मानतो, कारण आम्ही या नव्या करारामध्ये जीवन जगत असताना आम्ही फार गंभीर असलं पाहिजे. देवाच्या वचनाने गंभीर होण्याकरता प्रभू रोज आम्हाला तुझी कृपा पुरव. आमेन. Amen. आमेन. Hebrews 12 verse 10 onward, 10, 11, 12 also, brother share. और किसी को शेयर करना है जल्दी? I just want to say one thing. Last Sunday, I think वो मैसेज था humility के ऊपर, that brother had spoken on from Tamil Nadu, I think. तो मुझे याद है जब मैंने पहले राजाओं का जो बुक्स पढ़ा था, वहाँ पे 2 ऐसे इंस्टेंसेस थे ऑफ किंग्स who had repented, who had humbled themselves, और मैं याद करने को ट्राई कर रहा था कौन से थे. एक था एहाब, और आज जब मैं देख रहा था तो मैंने नोटिस किया कि दूसरा रेहोबोम के बारे में था वो. So 2 Chronicles chapter 12 verse 6, 2 Chronicles chapter 12 verse 6, वहाँ पे रेहोबोम के बारे में फिर से लिखा है कि एक बार रेहोबोम ने सुन लिया, वो टाइम पे परमेश्वर ने नबी के थ्रू बताया कि तुम जाके अपने भाइयों के साथ झगड़ा मत करो, तो उसने बात सुनी, और फिर उसके बाद उसने क्या किया, फिर उसने अपना जो राज था जुड़ा के ऊपर उसको मजबूत किया. लेकिन यहाँ पे लिखा है कि एक बार उसका राज मजबूत हो गया तो उसने और जो यहूदी थे उसके नीचे, उन्होंने परमेश्वर को धुतकार दिया, और फिर परमेश्वर अपने नबी के द्वारा वचन 5 में, वर्स 5, 2 Chronicles chapter 12 वर्स 5 में गॉड उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हें मिस्र देश के राजा के हवाले करने वाला हूँ क्योंकि तुमने मुझे धुतकारा है. और यहाँ पे फिर वर्स 6 में हम लोग देखते हैं, द किंग, the leaders humbled themselves and said the Lord is just. और verse 7 में लिखा है, when the Lord saw that they humbled themselves, the Lord's message came to Shemaiah, they have humbled themselves, I will not destroy them, I will deliver them soon. ये मतलब परमेश्वर ने क्या बोला कि मैं तुम्हें ये मिस्र देश के राजा के हवाले करने वाला हूँ क्योंकि तुमने मुझे धुतकारा है. लेकिन तुरंत रेहोबोम और उसके जो लोग थे उसके नीचे, उन्होंने खुद को नम्र किया और बोला कि हाँ, परमेश्वर ने सही बोला है, हम गलत हैं. तो उन्होंने खुद को नम्र किया, तो तुरंत परमेश्वर ने जो उनका जो जजमेंट था, उनका जो पनिशमेंट था, वो इमीडिएटली कम कर दिया. रेहोबोम पूरी तरीके से नाश नहीं हुआ, वो एक नॉर्मल मौत ही मरा. इवन दो उसको मिस्र देश के राजा को बाद में जाके थोड़ा चुंगी या टैक्सेस वगैरह देना पड़े, लेकिन वो उसका पूरा नाश नहीं हुआ. ये सेम चीज मैं एहाब के जीवन में भी देखता हूँ. जब एहाब के खिलाफ भी गॉड जजमेंट लेके आते हैं और एहाब खुद को हम्बल करता है, तो गॉड बोलते हैं कि इसने अपने आप को नम्र किया है, तो गॉड उस जजमेंट इमीडिएटली नहीं लेके आता है और कम हो जाता है जजमेंट. तो इससे मैंने क्या नोटिस किया कि क्या मुझे स्ट्राइक हुआ कि गॉड ह्यूमिलिटी को बहुत वैल्यू करते हैं. व्हेनेवर ही सीज एनी पर्सन हम्बलिंग हिमसेल्फ, गॉड के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर देन इवन अदर
obedience and all that, सबसे पहले God देखते हैं कि is this person willing to humble himself. तो इससे मेरे को रियलाइज हुआ कि ह्यूमिलिटी कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ ह्यूमिलिटी से भी गॉड का फेवर आ जाता है एक पर्सन के लाइफ के ऊपर, और कई बार जो जजमेंट आने वाला रहता है वो रुक जाता है. तो मुझे ये काफी टच हुआ और मुझे ये मेरे लाइफ में अप्लाई करना है. और किसी कुछ है 1-2 मिनट के लिए? What you have learned from them? तो कभी कभी पुराना नियम पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. बाइबल कैरेक्टर से हम लोग सीखते हैं जेरोबाम तो और रेहोबाम से. रेहोबाम was son of Solomon. वो how the kingdom split and both these people, दोनों को परमेश्वर का भय ही नहीं था जीवन में. जब उसको सजा मिलने वाला तो हाथ खड़े कर लेते हैं, गॉड गॉड हेल्प मी. बाद में अपने अपने मूर्ति पूजा के पीछे पीछे भागते थे वो लोग. एंड दैट्स व्हाई उनका जीवन में इतना सारा पाप आए थे. पूरा देश में भी पाप आते हैं. जैसे हम लोग पाप करते हैं तो हमारा जीवन में, हमारा परिवार में भी आ जाता है ये शाप. हमारा देश में भी आता है. हम जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर हमारे साथ रहते नहीं. इसलिए परमेश्वर कहता है परमेश्वर को पहला रखो हमारे जीवन में, अभी हमारा आशीष होगा. और जैसा दाऊद ने भी इतना किया, लेकिन दाऊद के बजाय परमेश्वर ने उनका पूरा फैमिली को आशीष दिया. इतना सारा पीढ़ी जनरेशंस के लिए. तो लेट अस ऑलवेज सीक टू लव द लॉर्ड व्हेन पुट हिम फर्स्ट इन आवर लाइफ. ऐसा नहीं कि हम लोग अपना जीवन को परमेश्वर को ठीक है मैं बाद में गलती करूंगा, बाद में बहुत पश्चाताप करूंगा. नहीं, पहले प्रभु से पूरा दिल से प्रभु का सेवा करना चाहिए. तो अब हम प्रार्थना करेंगे. प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु इन राजों के द्वारा हम लोग एक सीख लेते हैं प्रभु की आप हमारा पूरा दिल चाहिए प्रभु जी. हमारा दिल संसारिक चीज के लिए हमको रखना नहीं प्रभु जी. ये संसारिक लोभ है होते हैं प्रभु, खाना पीना और ऐश आराम करना प्रभु जी, और बड़ा बनना इस दुनिया में. प्रभु आपने कहा कि ये मेरा राज्य इस संसार का नहीं है प्रभु. तो स्वर्गीय चीज के लिए हमको खोज करना है प्रभु. हम झगड़ा नहीं करेंगे किसी से प्रभु. हमारा जीवन में हमसे हमेशा भलाई रहेंगे. पवित्र आत्मा की भलाई हमारे ऊपर रहेंगे. हम सबका भलाई करेंगे प्रभु. हालेलुया. इसलिए आपको दिन प्रतिदिन हमको एक एक दिन दिया आपके लिए जीने के लिए प्रभु. पवित्र आत्मा से भर दे ताकि हम आपकी इच्छा करें और आपको प्रसन्न करें दिन प्रतिदिन. थैंक यू लॉर्ड. ब्लेस आवर फैमिलीज, ब्लेस ऑल ऑफ अस लॉर्ड. हेल्प अस टू बी एज ब्रदर्स फेथफुल टू यू लॉर्ड. And bless the tomorrow's meeting also we pray, and give us the ability to encourage one another into a godly way, into a holy way. Thank you Father. Hallelujah. यीशु के नाम में मांगते हैं. आमीन.